ideas गाने की भी बड़े interesting थे. It was very, very new. So did you come up with this pictograph sort of idea? Yeah, kind of. Me and Taran both did. And then as each and every line went by, we took almost 10 months to finish that animation. Yeah, because when we started off, it was just for the credits, then it went on, then it was good for the whole song. So yeah, we took very long to do every line of it, yeah. So from a conversation we had earlier, she said she took a few months to make one song, abhi 10 months for this song. Yeah. So कितने सालों से picture बन रही है? 10-15 साल से? No, 1.5 years. Everything is happening in the same 18 months. अच्छा, तो आप एक-एक टाइम पर कहाँ थे? आप डायरेक्शन भी कर रहे थे, वहाँ पे एडिट रूम में भी थे, गाने भी बना रहे थे. फर्स्ट फिल्म में बहुत ज्यादा नहीं एक्स्ट्रा उठा लिया आपने? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. This is all that has to be done. And yeah, हर जगह थे. अच्छा, so wonderful. So I do hope it's come out the perfect way. So let's talk about this tall lady making a debut. Former Miss India. How did you cast her for this movie? We wanted somebody really hot and good looking, and someone who, you know, she has this very nice, sweet, Miss Congeniality feel about her, which goes with the character. So that's how, after looking all over India, we casted Miss India for it. Superb, it works. She's hot. I don't think she comes in the sweet category as yet. So, आपकी पहली film, how are you feeling this entire procedure about the film, the promotion, the media, maybe the critics? You never know. सब कुछ नया है मेरे लिए, तो मुझे सेट पे फर्स्ट डे जाने से लेकर के अभी यहाँ पे मीडिया से मिलने में, मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है हर चीज में. I'm very excited. Nervous? डरे हुए थोड़े से? Nervous नहीं, अभी तो नहीं हूँ, पर जिस दिन रिलीज है उससे एक दिन पहले तो. वो तो obvious ही बात है, वो तो हर किसी की सिटी मिट्टी गुल जाती है. अभी fun, अच्छा लग रहा है. Superb. Ira, you've come from your mother's one of the best actresses that there is around, you know. Thank you. And it's there in your genes, and now you're back onto this. You only ask questions about lineage. No. What I'm saying is basically आपके सरनेम को मैं थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वैसे कहना पड़ेगा बॉलीवुड में आप ज्यादा दिखती नहीं हैं, लेकिन एक्ट्रेस आप बड़ी अच्छी हैं. ये क्यों? मैंने हाइएटस लिया था 4 साल का. मैं थिएटर पे फोकस कर रही थी. I traveled a lot. I did a one-woman show, took it abroad. So done a lot of work in theater. I didn't get something that I could sink my teeth into till I found Nimmi. So ये थिएटर एक्टर से मेरी एक क्वेश्चन होती है कि बिल्कुल उनको लगता है कि हम बॉलीवुड नहीं करेंगे. अब कई बार उनको ऐसा लगता है कि देखिए हम ना आर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, बॉलीवुड जो है वो मासेस के लिए. आई थिंक बॉलीवुड आर्ट हो सकता है और है. सो आई थिंक बोथ थिंग्स कैन हैपन एंड आई वुड लव टू डू बॉलीवुड. I've never said no to Bollywood. ये बाउंसर आया और बहुत अच्छी तरह से आपने डक कर दिया. Very nice. Guys, thank you so much for, that was just a quick introduction. I'm going to ask you to take your seats again, and I will continue with this music launch. And the media interaction with the artist will be in a bit. Thank you so much, guys, for joining us on stage. Thank you, Salil. So, like I said, I'll be peppering it with some performances. There's a gentleman here.
an indication that it's more of a sexist film, and your title also says Dilli Wali Zalim Girlfriend. So, being a woman director, how have you tried to show the right perspective of women? Yeah, no, but this kind of stereotype that women are supposed to portray women differently, I don't think is very right. And being a woman, don't have to specially craft women characters in a different way. It's a wholesome perspective always for the story. And for the story, whoever is the main protagonist, whether it's the boy, the situation, the girl, everything is looked in from that perspective. Not that I'm a girl, so I would craft women differently. And in any which way, you will see a very great input from a lot of women in this film, as you can see. And the film is not sexist as such with the title. It's a very fun title. It's a very youthful film where you'll see a boy, girl, both sides ka perspective. Right, anybody else? One sec. फोटो ऑफ करनी है क्या सिर्फ? हाँ? 1-to-1. 1-to-1. सवाल कर ले. फिल्म का बेस क्या है और किस तरह का कॉन्सेप्ट है, आप एक बार ब्रीफ कर दें. फिल्म की कहानी बता. पूछ रहे. फिल्म की कहानी नहीं बता सकते अभी पूरी, पर जैसे आपने ट्रेलर में देखा कि in a single line, like everyone say it in a single line, the film is about this boy who falls in love with a girl who is the Zalim girlfriend here, and what all she does, and she's the root cause and the problem for a lot of good and bad things that come in the way, and how today's youth takes things in their own hands and stands up for themselves and and triumphs in the end. Yeah. किस तरह का जुल्म हुआ है फिल्म में, किस तरह का जुल्म किया है, वो तो आपको देखना पड़ेगा. Yeah. चलो we'll redirect to the heroines. You can imagine a lot of kind of zulms from your own personal lives, I'm sure. So ऐसे ही कुछ जुल्म हैं जो आप देख के कहेंगे हाँ शायद मैंने भी सहे हैं. अच्छा, यही क्वेश्चन को हम लोग हीरोइन से भी पूछ लेते हैं. आप पर जुल्म हुए क्या? पहली फिल्म थी आपकी, क्या जुल्म आपको झेलने पड़े इस फिल्म में? I love you, Salil. हाँ, बताइए. नहीं, मुझ पे कोई जुल्म नहीं हुआ. मेरी तो पहली फिल्म थी, तो I was the pampered child on the set. तो मुझे तो बहुत मजा आया, और मैंने जुल्म किया है दिव्येंदु के ऊपर. वो आप 20 मार्च को जाके देखिए. तभी आज बीमार पड़ गए क्या? Exactly, right. There you go. अच्छा ईरा, आप मुझे भूल गए? नहीं, आप इधर खड़ी हैं तभी. आप जरा बताएं ये जुल्म वाली जो सवाल है आपको काफी और ये हैंडल करना पड़ेगा, और क्या आप रियल लाइफ में जालिम गर्लफ्रेंड होती हैं? हो सकती हूँ. हो सकते हैं आप. अच्छा, आई थिंक सब जालिम हो सकते हैं. जालिम खाने को बोल सकते हैं, जिंदगी को बोल सकते हैं, यार को बोल सकते हैं. तो गर्लफ्रेंड तो डेफिनेटली हो सकती हूँ, लेकिन इस फिल्म में नहीं हूँ. मैं मम्मी की चॉइस हूँ इस फिल्म में. मैं गर्ल नेक्स्ट डोर हूँ इस फिल्म में, और सेट पे शायद जालिम हुई थी, वो यहाँ बताने की बात नहीं है. Ira, hello. Hi, Ira. My question is to you. हाँ जी, I can't see you. I am towards your left. Yes. Here. Yes. Yeah. You said you took a hiatus for 4 years. Yes. So, what attracted you towards this film and this script? I think a couple of things. There was a realistic sense to the film. The music, first of all, the music. I think the music, the people we got on the stage was a big attraction. The script for its realism. Nimi is a character which is very different from Aisha. It's not the glossy, glamorous side of Delhi. It's the very realistic, not the underbelly, but the realistic, like every man's story of Delhi. And so I like that. And there was some graft to the character, and I hadn't done a film for a long time. I loved Japinder. I was very impressed with her. So I said yes. And Divyendu, he'll thank me again for this, but Divyendu was a big part of why I said yes as well. Hello? प्राची, यहाँ. प्राची, आप डेब्यू कर रही हो मूवी में, इतने दिग्गज कलाकार है. इरा इज अ वेटरन थिएटर परफॉर्मर, सो क्या इनपुट्स लिया आपने उनसे, कैसा था? राइट इन द मिडिल, सोनूप इज देयर इन द मिडिल. या हाँ, मैं देखा सोनूप को, सामने बैठे हुए हैं. इनपुट्स मैंने बताया, पहली फिल्म है तो सेट पे फर्स्ट डे जाने से लेकर के
लास्ट डे तक मुझे सब कुछ नया नया लगता था. मैं वाज परफॉर्मिंग विद अल्फाज एंड हनी सिंह, तो तब बहुत नया एक्सपीरियंस था. इनसे मिली नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, पर बहुत मजा आया सॉन्ग देख करके और सॉन्ग करके. सो आई एम वेरी हैप्पी आई एम मीटिंग हिम. ईरा से आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कि अभी ये कैमरा हर सीन ओवर द शोल्डर और चेंज. मैंने कहा हर सीन 3-4 बार करना होता है. शी सेड हाँ, हर सीन 3-4 बार करना होता है. सो वो नई चीज थी मेरे लिए, और मैंने पूरी मूवी बहुत एंजॉय करी है, और मैंने सबको बहुत क्वेश्चंस पूछ के बहुत परेशान किया है. हेलो, दिस इज रिचा फ्रॉम सिने स्पीक्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ओनली दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, मींस इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन? देखिए, हमने ना ऐसा सोचा फ्रेंचाइजी ले लेंगे. दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड हो गई है, बॉम्बे वाली जालिम गर्लफ्रेंड, चेन्नई वाली जालिम गर्लफ्रेंड, फिर इंटरनेशनल चले जाएंगे, और फिर बॉयफ्रेंड, और फिर बॉयफ्रेंड पे आएंगे. नो, बेसिकली इस मूवी में इट्स ऑल अबाउट अ दिल्ली स्टोरी. जालिम गर्लफ्रेंड क्योंकि लड़के को लड़की से प्यार है और लड़की को लड़के से प्यार नहीं है, तो वैसा वाला जालिम है. मेरा सवाल जयजीबी से है. पाजी इधर. आप इतने पॉपुलर हो, आप नॉर्थ में सब लोग आपको सुनते हैं, हर जगह वैसे आप बहुत पॉपुलर हो, मगर आप बॉलीवुड में इतने कम गाने क्यों करते हो? मतलब क्या रीजन है? I think one of the reasons I said it in my interviews as well. I like how we produce. Bollywood to me is very unprofessional. Last minute में होता है कोई भी चेंजेस है, भाई अभी गाना चाहिए, कल बना के दोगे, ऐसा थोड़ा बनता है ना गाना. So हम जब गाना बनाते हैं 2 महीने भी लगाते हैं, 3 महीने भी लगाते हैं. So that's why I think I got a name that to protect. 1-2 गाने मैंने किए थे, I wasn't satisfied with the music, so I said नहीं, ऐसा काम नहीं करना. ये किया है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है टाइगर स्टाइल की, so इसीलिए that's why I don't really do. I do little work, I do to protect my image. अच्छा, इस गाने को करने के लिए कितने महीने लगे या कितने दिन में गाना बना? इसको 6 महीने उन्होंने बनाया. पहले बीट बना के then they send it to us to hardcore. She changed the rap, then Japinder didn't like the rap she did. She said get back in the studio again. So then I did my re-vocals and everything. So जब टाइम लग के गाना कोई बनता है, उसका रिजल्ट फिर आता है. So I'm very happy with the production. Thank you पाजी. Thank you. एक सवाल मैं जपिंदर से पूछना चाहूंगा. ये आपने कुछ देर पहले भी हमें बताया था कि आप ये रैप की लाइंस ना आपने हनी को भी भेजी थी, तो ये आपके अंदर कोई एक रैपर है? यहाँ भी आपने बोला कि मुझे पसंद नहीं आया, तो एक अच्छा रैप क्या होता है? नहीं, कुछ तो आपने कुछ पॉइंटर्स बनाए होंगे कि हाँ ये मुझे बैठ गया. आप बताइए. मेरे अंदर कोई रैपर नहीं है, एंड या आई जस्ट ट्राई टू गेट व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स. आप कंट्रोल फ्रीक हैं, जो आप चाहती हैं वही होना चाहिए. या जो फिल्म के लिए अच्छा है वही होना चाहिए, और वही हुआ. एंड दैट्स थैंक्स टू एवरीबॉडी हु एक्चुअली यूज्ड टू लिसन टू दिस इनएक्सपीरियंस्ड रैपर एंड स्टिल चेंज थिंग्स. सुपर. हाय, मेरा नाम रवि है एंड आई एम फ्रॉम जिंग. जविंदर, सवाल मेरा आपसे है, जैसे कि हमने देखा जाता है कि पुराने जमाने में या फिर नए जमाने में कई सुपरहिट गाने बन चुके हैं, और उन गानों के जो टाइटल होते हैं उन पर कई सारे फिल्मों के नाम रखे जाते हैं. अभी जैसे आप देख लीजिए, रमैयावस्था हो गया, या फिर ये जवानी ये दीवानी. अभी आपने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड रखा है. दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड में सिर्फ एक वर्ड आपने डाला है, जालिम. तो क्या ये गाने की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से आपने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, या फिर कुछ और ही है इसके बारे में? We did not simply add one word in it, and we had the combinations of Zalim girlfriend, and because the story was based in Delhi, there was also out of the whole combination of the script, गाने से नहीं आया था. अब स्क्रिप्ट उस गाने से मैच हो गई, बिकॉज दिल्ली की लड़कियां इतनी फेमस है, इतना देयर अ जॉनर इन देमसेल्व्स, उन पे इतना कुछ बोला जाता है, लिखा जाता है, गाया जाता है, तो इसलिए दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाना है. बट हमने उस गाने को देखते हुए स्क्रिप्ट नहीं लिखी. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जालिम गर्लफ्रेंड, इसका डेफिनेशन क्या है? आप जरा अपने अंदाज में आप एक बार बता दीजिए, जरा बयां कर दीजिए. It's a very simple thing, and yeah. Wrap it up, man. Wrap it up. Yeah. Even if you hear, suppose Birthday Bash का lyrics, आप वो lyrics के एक-एक line को सुनेंगे, आप exactly जालिम girlfriend कौन है, क्या है फिल्म में समझ जाएंगे. Ira, can you see me? Yes, I can see. I've been a big fan of you. Just curious to know, I see the poster behind you. I don't see a picture of you in there. Why? Why is that so? Because I'm not the Zalim girlfriend, but I am the girl yeah, next door. She's Mummy's choice, and the concept of the poster that goes with the title, as you see with the shoes and with the stop signal, it's talking about the title, and the title talks about the Zalim girlfriend, so that's the reason, yeah. Hi, Japinder. Hi. Here. Idhar.
On your right. Yeah. Yeah, hi. I just want to ask the T-Series co-producer, so how much of a contribution was Bhushan Kumar's in, making the music album? No, not at all. Nothing. So they are not the co-producers of the film, and the music is with T-Series. They are supporting the film in a very, very great way with the platform that they're giving to expose the music which they have liked. And the music has been made, like we've been saying, since X number of months and X number of months. After that, we've gone to them. So the music has been with the story and not with the music label involved. JGB, आपका एक गाना बड़ा सुपरहिट हुआ है इस बीच, मित्रा दी बूट। हाँ मित्रा दी बूट जी। हाँ। इस गाने से कितनी उम्मीदें हैं आपको? कितना अंतर है दोनों गानों में? बहुत डिफरेंट है। Because that पहले तो वो मेरा पहले मैंने duet कभी किया ही नहीं. So that was my first duet. Me and Dr. Zeus, our first collaboration. So that worked well. But this one, I got big hopes for this song internationally. Because clubों में भी बजेगा, सभी को समझ भी आएगा. Because hardcore is rapping on it, and then I was singing Punjabi. So you know what I mean? I got a really deep, desi Tate Punjabi, which people don't understand. So hardcore will help that out. So video भी बहुत अच्छा shoot हुआ है. So I'm hoping for a bigger hit than मित्रा दी बूट. मेरा सवाल डायरेक्टर से है. मैम here. On the right hand side. सलील ने शुरू में ही बोला था इवेंट के कि भट्ट साहब ने उनको कहा था कि फिल्म कोई भी हिट होती है उसका सबसे बड़ा हीरो होता है म्यूजिक. मैंने बोला ही उनसे मत पूछ रही हो यार. नहीं मैं वही कह रहा हूँ, आप कितना एग्री करते हो इस बात से? और दूसरा, क्या इसी वजह से आपने इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे म्यूजिक सिंगर्स डायरेक्टर हैं सबको आपने अपनी फिल्म में ले लिया? See, music of course is an integral part, and जो वो कह रहे हैं कि उससे hit होती है नहीं होती है, I think because people watch the music first and see what the film is, so they get a glimpse of the film from the music. So that is why music is one of the most important things, because that's what people are watching first. So and I was very lucky कि मैंने सारे excellent music directors को ले लिया. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मतलब इतने सब लोगों को not at all. जैम करना एक यार खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा भी लाइट चलने दे यार थोड़ा. There was no problem at all. In fact, there was tremendous support and so much support, and all of them know each other so well, and they all I think also inspire each other to do better. There is no kind of trouble at all. Japinder. In fact, it becomes very easy with such good names involved. Japinder on your left. Yeah, Japinder. जपिंदर, थोड़ी देर पहले अभी आपने सलील को जैसा कि आप कंट्रोल फ्रीक हैं, तो ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कितनी सख्ती आपने बरती फिल्म, क्योंकि आप भी यंग हैं, फिल्म की जो कहानी है पूरी तरह से यंग लोगों की है, तो कितनी सख्ती, या फिर ईरा और प्राची से भी यही जानना चाहेंगे कि कितनी सख्ती इन्होंने बरती? मैंने इतनी सख्ती की कि if there has to be somebody's zalim, I was probably 100 on the meter. तो मैंने पूरी सख्ती की सबके साथ. Yes. Yeah, right. बहुत जालिम रही है सेट पे ये. मतलब हम आते थे, हमें डांट शुरू पड़ती थी. मैं बिल्कुल मजाक कर रही हूँ. She was ये सारा टाइम she was always very calm. अगर कोई सीन अच्छा नहीं होता था तो you can see on her face कि अच्छा है, एक बार और, इतने प्यार से बोलती थी. So खुद ही अंदर से लगता था कि गिल्ट लगता था, ओ शिट गंदा सीन किया, दोबारा करो, जपिंदर is not happy. So she was always very sweet to everyone. मैंने पूरे सेट पे इनको कभी नहीं देखा किसी पे गुस्सा होते हुए. Right? मुझे इतने ही पैसे मिले थे, बस अब हो गया. Salil, one minute, one last question. Yeah. So, Natalia, a question for you. I was wondering when you were going to come there, huh? Yeah. I knew you would wonder about the same. Natalia, how tall are you? I knew I was expecting this question. What do you think? Everybody think like I'm 6.5 but no, less. Try to guess. Are you as tall as Amitabh Bachchan? Without heels. She doesn't know how tall is Amitabh Bachchan to answer that. Almost, yeah. I'm 5'11". It's 180 centimeters. But everybody think I'm tall. I don't know why. We're all short.
सफ़र बहुत अच्छा रहा मेरा। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस फिल्म से डेब्यू किया है, क्योंकि आई एम द टाइटल ट्रैक, आई एम द जालिम गर्ल इन द मूवी एंड आई हैव 4 सॉन्ग्स, अमेजिंग रोल टू प्ले और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ी? नहीं, तैयारी कुछ नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा बोल देंगे। इट्स मोर ऑफ द रोमांटिक साइड विच इज़ द पार्ट ऑफ द होल मूवी, सो नथिंग स्पेशली डन फॉर द सॉन्ग्स एंड ऑल, इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ द मूवी। मैंने कहीं पढ़ा है कि IAS करने की तैयारी करने लड़का आता है, उसको आप भटका देती हैं, कुछ क्या है? बिल्कुल भटकाती है। या ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्ज़ाम और उसको मुझे देखता है, उसको मुझसे प्यार हो जाता है और मेरे प्यार में वो बेचारा कुछ पैसे लगा देता है, कहीं पे पैसे वापस नहीं आते हैं और एक पूरा ट्रैप है जिसमें वो फंस जाते हैं। और निम्मी मतलब ईरा दुबे, दिव्येंदु और प्रद्युमन, दे आर द फ्रेंड्स जो इस ट्रैप से बाहर आते हैं। जैकी श्रॉफ जी, इतने बड़े कलाकार के साथ आपको मौका मिला काम करने का, तो कैसा अनुभव रहा? कुछ इंटरेस्ट किया? आई वाज वेरी एक्साइटेड टू नो जैकी सर इज इन द मूवी और उनके साथ मेरा सिर्फ एक जगह मैंने स्क्रीन शेयर करी है और वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आई लव हिम सिंस माई चाइल्डहुड। उनको देख करके आई वाज लाइक आई एम वर्किंग विद हिम, इट वाज टू मच ऑफ फन। आपको नहीं लगता कि ये म्यूजिकल चीज ज़्यादा हो रही है फिल्म में? एक्टिंग को म्यूजिक दबा सकता है क्या फिल्म में, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, जब आप फिल्म देखेंगे तो फिर तो एक्टिंग हो रही होगी ना, वो तो आप पूरी मूवी देखेंगे। अब लोगों को लाने के लिए दे शुड ऑल्सो नो मूवी में है क्या, तो आई थिंक सॉन्ग्स प्ले अ वेरी ग्रेट रोल अबाउट दैट। एक प्रमोशन कर दें कि लोग देखते हैं 20 मार्च। जी, 20 मार्च को रिलीज हो रही है दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड। प्लीज कम एंड वॉच द जालिम गर्लफ्रेंड। थैंक यू। ये बहुत मज़ेदार फिल्म है। दिव्येंदु शर्मा जब मैंने सुना उस फिल्म में है, वो बहुत रियलिस्टिक एक्टर है। उन्होंने फिल्म में ट्रेनिंग ली है। जपिंदर से जब मैं मिली, वो बहुत मतलब फ्रेश पर्सपेक्टिव है उनका, वो एक फीमेल डायरेक्टर है। और निम्मी का जो कैरेक्टर है वो ग्लॉसी ग्लैमरस कैरेक्टर नहीं है, वो बिल्कुल रिलेटेबल मॉडर्न इंडियन जो लड़की है, जिसके माँ बाप उसको मतलब उसको कॉलेज से के बाद उसको मतलब मैरी करके उसको घर में बैठाना चाहते हैं। ऐसी लड़कियां बहुत हैं भारत में। तो ऐसे लड़कियों को दिखाना और उनको जो उनका जो डिज़ायर है कुछ कर दिखाना जिंदगी में, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसका ये ध्रुव का जो कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर जो है दिव्येंदु शर्मा जिसका किरदार कर रहे हैं, वो एक जर्नी पे जाता है ये जालिम गर्लफ्रेंड की वजह से। म्यूजिक को काफ़ी म्यूजिक को बढ़ावा दिया गया। जी, म्यूजिक आई थिंक फिल्म की USP है। आई थिंक जनरली स्पीकिंग म्यूजिक अगर हिट हो तो फिल्म भी हिट होती है। प्राची का पहला फिल्म है, आई थिंक शी इज डूइंग स्मैशिंग, शी इज डन अ वेरी गुड जॉब फॉर व्हाटएवर शी हैड टू डू। म्यूजिक बहुत मतलब एक्चुअली म्यूजिक धमाकेदार है, क्योंकि इट इज़ लाइक अ कैरेक्टर ऑन इट्स ओन। बहुत बड़ा USP है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द फिल्म। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि म्यूजिक सबको पसंद आ रहा है। अच्छा, फिल्म के गाने 4-5 गाने हैं, सभी काफ़ी अच्छे हैं और सभी बड़े सिंगर्स जी। तो आपका एक फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और क्यों? जालिम दिल्ली आइड से जैज़ी बी और हार्डकोर का जो सॉन्ग है, क्योंकि मैं गर्ल पिक्चर में मैं सीधी सादी लड़की हूँ, उसमें मुझे थोड़ा मज़ा आया, मैंने थोड़ा लेट गो किया, वो बहुत मज़ेदार था क्योंकि वो एंड क्रेडिट्स में आएगा और हम सब ने बहुत नाचा, बहुत मज़े किए। बट व्हाट इज मोर चैलेंजिंग, थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग? बोथ इन देयर ओन वे। थिएटर इज़ होम फॉर मी। मैं बहुत सालों से थिएटर कर रही आ रही हूँ। आई थिंक दे वेरी डिफरेंट मीडियम्स। आई थिंक सिनेमा इज़ मोर अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड थिएटर इज़ मोर एन एक्टर्स मीडियम। और अभी बहुत कुछ करना है, सीखना है, बहुत दिखाना है सिनेमा में। आई थिंक सब ये तीनों का फिल्म है और प्रद्युमन सिंह का भी फिल्म है, वो एब्सेंट है अभी, तो इसका मतलब नहीं कि उनका मतलब फिल्म नहीं है। तो सबको रिकग्निशन मिलेगा, सब ऑडियंस को सब पसंद आएगा। I think girlfriends are zalim and so are boyfriends. I think everybody can be zalim. जालिम का मतलब प्यार में भी, दुख में भी, किसी दर्द में भी कह सकते हैं। जालिम खाना, जालिम जिंदगी, जालिम दिन, जालिम मौसम। और ये इंटरव्यू अभी जालिम हो रहा है तो हम बंद करते हैं। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले रोल करूं? रोल राजा भाई, रोल। सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो हनी सिंह है वो हमेशा परंपरागत गाने नहीं बनाते हैं, हमेशा लड़कियों को दबाने वाला गाना बनाते हैं, तो आपका क्या टेक होता है? कभी आपने सजेशन? ऐसा कुछ नहीं यार कि हम पर्टिकुलर लड़कियों को टारगेट करते हैं। हम ये बहुत और भी गाने बनाए हैं। भगत सिंह जी पे गाना बनाया था,
लड़कियों पे जो डोली विदाई पे उसके भी गाना बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम पर्टिकुलर लड़कियों को टारगेट उसको नीचा दें, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल इन द सोसाइटी ब्रदर। जो हम देख रहे हैं, जो हम दिल्ली में गेड़ी गुड़ी मारते रहते हैं इधर उधर, जो लड़कियाँ डबल मीनिंग कुछ नहीं है सर, वो लोगों की मेंटालिटी है। आप एक गाने की लाइन मुझे सुनाइए पहले। मैंने सुना है तू 20+ हो गई, चढ़ती जवानी तेरी बेबस हो गई। इसमें क्या आई डोंट थिंक नॉर्मल नहीं है, क्या नॉर्मल नहीं, ये एक तरह से आप सेंसिटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बस मैं चाहता हूँ कि हमारे आवाम को ये रिक्वेस्ट है कि उसको रादर देन उसको क्रिटिसाइज करने की, उसको एज एन एंटरटेनमेंट सोर्स लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी फिल्मों में जैसे शक्ति कपूर जी हो गए, ये अमरीश पुरी, ये लोग रेप करते थे, तो बच्चा घर पे आके ये थोड़ी कहता मुझे रेप करना है। वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट होता है, वो उसको दिल पे लेने वाली बात नहीं है। तो आई गेस वो सभी लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा, इस गाने के लिए आपको क्या ब्रीफ किया था डायरेक्टर ने? डायरेक्टर ने हमें वही कह रहा है, इस बात पे आते हैं लोग कि हमें कह देते हैं कि यार तुम ऐसे गाना तुम ऐसे बनाते हो। डायरेक्टर उन्होंने जब हमें स्टोरी लाइन सुनाया, वो कहते हैं कि लड़की का कैरेक्टर ऐसा है फिल्म में, तो अगर फिल्म को कैरेक्टर को देख के नहीं लिखेंगे तो फिर वो उसका कनेक्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने बताया कि लड़की बहुत चंट है, चालाक है, वो लड़कों को यूज़ करती है, उनसे पैसे ले लेती है, उनसे गिफ्ट्स लेती है, और बाद में उसको घास में डालती है, उसको कहती है तो मेरा फ्रेंड है सिर्फ। तो वैसा सा उन्होंने हमें ब्रीफ किया, तो उससे आपसे हमने गाना बनाया। कितना अलग एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। वैसे मेरा डेब्यू सॉन्ग है बॉलीवुड में, तो एक्सपीरियंस तो आई वाज वर्किंग विद यो ओनली। तो इतना मतलब हम पिछले 8-9 साल से गाने बना रहे हैं इकट्ठे साथ में, तो हमने कभी ऐसा पर्टिकुलर सोचा नहीं कि बॉलीवुड को टारगेट करेंगे या कुछ भी है। हम गाने बनाते हैं सिर्फ। अगर वो गाना बॉलीवुड वालों को पसंद आता है, फिल्म में आ जाता है। अगर वो नहीं पसंद आता तो हम उसको सोलो अपनी खुद वीडियो करके खुद सिंगल रिलीज करते हैं। Thank you so much. Yeah, no, she's definitely hot, but yeah, we are coming from different backgrounds slightly. But getting the opportunity in the film, how did you get the opportunity? Can you just clarify on the issue? How did you get the opportunity? I was doing modeling before, and I did a couple of movies, and Taran, the producer, is a good friend of mine, and we had lunch, and he said like, I have a movie coming up and this on, and I always wanted to cast you for something exciting and new, and why don't you do this song? I said, why not? It's a challenge. But what do you have to say about the professional front of Bollywood as such? What is the working culture as such? Was the working culture very professional and professional? Comment on that. Yes, I had almost 1 month prepared to learn the song in Hindi and to now I'm learning Hindi as well. आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम नतालिया है। So are you here to stay, or you will be returning back to your home place? I live in Dubai and in London, and from Dubai it's very short flight for me. And if I get more projects, of course I would spend more time here. And talking about the city of Mumbai, what is the hospitality culture? Talking about the local people. I love it. You know, I have so many friends from India, and they are my best friends because Indian people are so hospitable, so friendly, so open, and I love the culture. I love all your holidays, Holi, and I'm so sad I didn't do it. I was in London, but it's my dream to do Holi. Besides this, are you working on any other project as such? I'm working on a TV series, but that will be filmed in Dubai and worldwide. Okay. As for Bollywood, I'm waiting for new projects to come. Opportunity कैसे मिला और opportunity पाने कब कितनी खुश हुई जब आपको ये मिला? I'm from Punjab and बहुत almost 7-8 years म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ एंड बॉलीवुड में मेरा एक ट्रैक आया पहले सेकंड हैंड जवानी एंड आफ्टर दैट दिस इज द सेकंड ट्रैक टिप्सी एंड जिसके साथ अभी मेरा लास्ट मंथ पेन किलर सॉन्ग आया था एंड टिप्सी इज़ सुपर हिट, बहुत सारे पसंद कर रहे हैं और अच्छा लगा ये सॉन्ग जब मुझे मिला। आई वॉज रियली हैप्पी एंड जब इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सो आई एम मच मोर हैप्पी। टिप्सी का मीनिंग बता सकते हैं क्या होता है? टिप्सी स्लाइटली ड्रंक, थोड़ी सी। और क्या कहना चाहेंगी? पूरा पंजाबी कल्चर मूवी में नजर आ रहा है, गाने वाले भी पंजाबी हैं, एक्टर भी पंजाबी कल्चर तो नहीं नजर आ रहा बट या पंजाबी सॉन्ग्स काफ़ी सारे जो पंजाबी प्रोड्यूसर्स हैं, यूके के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने म्यूज़िक किया है, सिंगर्स हैं, तो पंजाबी स्टाइल है म्यूज़िक का एंड दिल्ली की मूवी है, सो अच्छा मिक्स एंड मैच है। आपके अलावा हार्डकोर और हनी सिंह का गाना, हनी सिंह का जो गाना होता है किसी फिल्म में तो फिल्म गारंटी हिट ही होती है, आप कितना मानते हैं इस बात को?
हनी सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स उनके हिट हैं एंड ये सॉन्ग भी बर्थडे बैश इज गोइंग वेरी वेल, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। ये सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आप खुद एक अभिनेत्री लग रही हैं, खूबसूरत अभिनेत्री। थैंक यू। तो कितना मैच्योरिटी से आपने इन लोगों को हैंडल किया? कितनी मैच्योरिटी से हैंडल किया तो वो बता पाएंगे। मैंने फिल्म को पूरी मैच्योरिटी से हैंडल किया एंड उसका अभिनेत्री लगने या ना लगने से इतना कनेक्शन नहीं है। अगर आप अभिनेत्री लगती हैं तो आप मैच्योरिटी से नहीं हैंडल करेंगी तो थोड़ा कोई पास्ट में फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस या फिल्म में कब? हाँ जी, मैं बहुत सालों से पार्ट रही हूँ। मैंने टेलीविज़न के साथ काम किया है, अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म म्यूज़िक वीडियोस बनाई हैं और मैंने प्रकाश शाह सर को भी असिस्ट किया है। फिल्म स्कूल से भी 2 साल का फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया है। सो एंड लॉट ऑफ माई फिल्म हैव ऑल्सो गॉन टू लॉट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, तो दैट एक्सपीरियंस काफ़ी सालों से हो रहा है। अच्छा, स्क्रिप्ट कैसे दिमाग में आई, कैसे इसको फॉलो अप करेंगे, कब ये थॉट आया? ये थॉट अराउंड 3 इयर्स पहले आया था। तो तब उसके बाद पहले तो मैंने आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मंथ्स अंडरस्टैंडिंग on how to make it rather than completing the script. When I felt confident that